Good morning students, welcome back to our online sessions of science class 10. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So I requested you just avoid to go unnecessary outside your homes, just avoid to go into the crowded places, and if it should be necessary and you have to go outside your homes, use the first of mask covers, always be with take sanitizers. And when you are homes, always wash your hands within a 20-second specific time of interval. Give a hygiene in your homes. So stay homes and stay safe. Now students, in the previous class of this control and coordination chapter of part 1, we are discussing about the coordination into the plants. How the coordination that will be done into the plant, specific part of the hormones like stimulus of tropisms and the nasturtiums. But today we are discussing about the coordination into the humans. Humans के अंदर कैसे coordination and controls होता है. उसके अलावा we discussing about the specific terms of the nerve cell, जिसमें cell, body, dendrites and axons आते हैं. Function of nerve cells क्या है, कैसे electrical signal impulse होते हैं nerve cell के through human body के अंदर, spinal cord का structures क्या है, reflex action क्या है, reflection arc क्या है. These are the topics that we are discussing in our today's class, right? So first we are discussing about how the control and coordination that can be done into the humans. Humans के अंदर कैसे control and coordination होता है. So if you know that human structure of our body that can be made by the different type of the cells, tissues and organs. Different type of tissues are there, different type of organ cells are there, different type of organ, different type of organ system that can be work in your body. So if all this type of cells and tissues that can be have to be communicate to each other and specifically work a specific functions, is it possible? Yeah. Is it possible? Because that should be done by the control and coordination. So in which there are two main things which is responsible, in which I think so the nervous system is one of the important medium which is generally having into the animals or maybe the living organisms of the human body, which generally control and coordinate all these activities which is done in your body or through your body, right? So each and every activities that can be easily controlled and coordinated by the nervous tissues. The nervous tissues जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, सारे फंक्शंस जो हमारे बॉडी के थ्रू हो रहे हैं, बॉडी के अंदर हो रहे हैं, सबको वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है. The nervous system that can be coordinate the muscles of the person, so can easily do the things like writing, dancing, walking, etc. Dancing or maybe the exercise, whatever the activities that can be performed by the persons. So that muscles which is also be having to coordinate and control by the nervous system, जिसके वजह से सारे फंक्शन हम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, हैंड को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. So these are all these activities which can be generally helped to done by the coordinate of the nervous tissue. So nervous systems के अंदर also we seen that the nervous system that is also coordinate over the involuntary functions. जो हमारे बॉडी के अंदर involuntary function है which cannot be seen. अभी हार्ट बीटिंग हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, which cannot be seen, but this all these activities which also be controlled and coordinated, this is called involuntary functions. This entire involuntary functions also be controlled and coordinated by the nervous system. The nervous system भी इसको control and coordinate करता है. So in human nervous system collect all this type of information, interprets and respond according to the specific part, and according to that it can be respond. So हमारे बॉडी के थ्रू जो भी मैसेजेस रिस्पॉन्ड जनरेटेड होता है उसको कलेक्ट करना, उसको प्रॉपरली उसको इंटरप्रेट करना, उसको स्पेसिफिक ऑर्गन तक उसको प्रोवाइड करना, दिस ऑल द एक्टिविटीज दैट कैन बी डन बाय द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इस पूरे एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करता है. ऑल्सो नर्वस सिस्टम ऑल्सो हैविंग टू पासेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर जो इंफॉर्मेशन पास आउट है, मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर जो हम मैसेजेस पास करते हैं, which all having done by the nervous system. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के बारे में होता है जो एंटायर एक्टिविटीज जो ह्यूमन बॉडी की है उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस दैट कैन बी जनरेटेड डन बाय द स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ नर्वस सिस्टम. चलिए, तो नर्वस सिस्टम के अंदर आप देखेंगे तो उसमें एक स्पेसिफिक सेल होता है जिसको हम नर्व सेल कहते हैं, नर्व टिश्यू भी आप उसको कह सकते हैं. ये सारे फंक्शंस को वही इंप्लीमेंटेशन करता है. तो उसका स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है कि नर्व सेल के स्ट्रक्चर्स में क्या होता है. जैसे आप देखेंगे उसकी फिगर, नर्व सेल की अगर फिगर देखेंगे तो उसमें भी इस तरह का सेक्शंस आपको दिया रहता है. तो नर्व सेल इज जनरली is structural and the
the functional unit of nervous system. Nerve cell is a structural and the functional unit of nervous system. Nervous system का जो structural और functional unit होता है उसको हम nerve tissues या nerve cell कहते हैं. Nerve cell is generally comprised with the three different components. उसके अंदर तीन अलग-अलग components होते हैं nerve cell के अंदर. पहले को हम कहते हैं cell body, दूसरा जो होता है वो dendrites होता है, तीसरा जो होता है उसको axons कहते हैं. So nerve system that can be comprised of three different components, जिसमें cell body, dendrites and the axon. These are the three main terms which can be seen into the nerve cell. पहले हम डिस्कशन करते हैं cell body के बारे में कि what is the cell body. So cell body generally contain a cytoplasm and nucleus. एक राउंड कलर का स्ट्रक्चर आपको स्टार्टिंग पोर्शन में दिख रहा था, वो है आपका सेल बॉडी. सेल बॉडी जो होता है वो कंटेन करता है बीच में एक राउंड फॉर्मेशन जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसके आसपास होता है साइटोप्लाज्म. सो सेल बॉडी दैट कंटेन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. दीस आर द टू थिंग्स व्हिच इज जनरली हैविंग एज अ पार्ट ऑफ द सेल बॉडी. क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है. सो सेल बॉडी के अंदर से फ्रॉम अ सेल बॉडी we generally see that number of short or long fibers that are stretching out from the cell body. तो सेल बॉडी के अंदर से बहुत तरीके के फाइबर्स स्ट्रेच आउट होते हैं, विच सम ऑफ द स्मॉल फाइबर्स, सम ऑफ द लॉन्ग फाइबर्स. से सारे जो फाइबर्स होते हैं जो सेल बॉडी में से डिराइव होते हैं, उसको इंप्लीमेंटेशन किए जाते हैं, उसको स्ट्रेचिंग आउट किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं नर्व फाइबर्स. दिस आर जनरली फाइबर्स इज कॉल्ड एज नर्व फाइबर्स, जो सेल बॉडी के अंदर से स्ट्रेच आउट किए जाते हैं, विच हैविंग लॉन्ग और शॉर्ट, व्हाटएवर द फाइबर्स आर देयर, but it can be stretching out from the cell body, so it is also known as a nerve fibers. उसको हम nerve fibers भी कहते हैं. So that is the structure of cell body. दूसरा जो स्ट्रक्चर आता है nerve cell का वो है dendrites का, D-E-N-D-R-I-T-E-S, dendrites. तो अभी सेल बॉडी के अंदर से there is a very short fibers which are stretch out. ये जो short fibers होते हैं उसको हम कहते हैं dendrites. The short fibers which is stretch out from the cell body, उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे dendrites. The short fibers which is stretch out from the cell body, that is called as the dendrites. और तीसरा जो सेक्शन है उसका वो है axons. तीसरा जो सेक्शन है उसको हम कहते हैं axons. So the long fibers from the cell body which are generally stretch out, that is called as the axons. जो long fibers होते हैं उसको axons कहते हैं. उसमें और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरिलेमा, N-E-U-R-I-L-E-M-M-A, न्यूरिलेमा. So around the axons, axon क्या है? It is a long fibers. So around the axons there is a protective and the insulating sheet of the myelin that can be found out. ये जो axons होता है, axon के आसपास एक protective layer of sheet जो होता है उसको myelin sheet कहते हैं, जो protective sheet के फॉर्म में काम करता है. और ये जो myelin का sheet है, जिससे the sheet of myelin is made with the proteins, ये proteins के बने हुए हैं. The myelin sheet we generally having to protect the formation of axons, which is generally made by the protein. Protein के बने हुए रहते हैं. And dendrites and axons both are the implementation moving freely from the cell body. ये दोनों कहाँ से implementation होते हैं? Cell body के अंदर से implement होते हैं. So they can be moved freely from the cell body. ये तो पूरा इसका स्ट्रक्चर हो गया. But what is the function of nerve cell? Nerve cell क्या काम करेगा? What are the generally functions which generally implemented by the nerve cell? Nerve cell के अंदर सबसे बड़ा काम होता है the message which acquired by the dendrites. The message which is acquired by the dendrites. Dendrites is what? It is a short fibers from the cell body which are stretch out. तो जो मैसेज जो एक्सेप्ट करता है, जो मैसेज जो एक्वायर्ड होता है डेंड्राइट्स का, which of the nerve cell, it is a set of chemical reactions. The message which is received by the dendrites, it's generally a part of the chemical reactions. It is a part of the chemical substance, and which generally create the electric impulse, which is known as a nerve impulse. उसको क्या कहेंगे? nerve impulse कहेंगे. तो ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो इम्प्लीमेंटेशन करता है डेंड्राइट्स और एज अ मैसेज, केमिकल मैसेज, इसको किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करता है. और इलेक्ट्रिक इम्पल्स थ्रू द नर्वस सिस्टम ए डिफरेंट बॉडी के अंदर मूव करता है. तो इसीलिए मैंने लिखा है कि एक्सप्लेन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स इनटू द नर्व सेल. नर्व सेल के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, क्या काम करता है, वो इसके अंदर दिया हुआ है. तो पूरा जो नर्व सेल का स्ट्रक्चर है उसमें तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक सेल, बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स. तो the message which generally acquired at the dendrite of the nerve cell, generally whatever the message
which intercept and they are acquired, which generally having by the dendrites of the short fibers of the cell body into the nerve cell. So the message acquired at the dendrites of the nerve cell and which is due to a chemical reaction. This is generally part of chemical reaction, and that chemical reactions create an electric impulse and which is known as a nerve impulse. Electric impulse nerve के अंदर create होता है, इसीलिए आप इसको nerve impulse भी कह सकते हैं. It is also known as a nerve impulse, right? So the dendrites that picks up the messages from the receptor, एक specific organ होगा वो message generate करेगा. तो dendrite which picks up that message from the specific receptor and passes the messages to the all the body and then to the axons. Okay? So dendrites क्या करेगा, वो specific message जो एक receptor जो body का organ है वो generate करता है, उस message को acquire करेगा. एक्वायर करने के बाद थ्रू द सेल बॉडी, क्योंकि डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स का होता है सेल बॉडी के अंदर फ्रीली मूव करते हैं, तो फ्रॉम द डेंड्राइट्स इट कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन पासेस फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन्स. कहां पे भेजेगा, एक्सॉन के पास भेजेगा. तो ये मैसेजेस एक्वायर करने का काम डेंड्राइट्स करता है, उसको सेल बॉडी से लेके एक्सॉन्स तक भेजने का काम लास्ट में एक्सॉन्स तक भेजता है. अभी एक्सॉन्स क्या करते हैं, एक्सॉन दैट पासेस द मैसेज टू द अनदर नर्व सेल व्हिच इज जनरली थ्रू अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ जंक्शन. तो एक्सॉन्स क्या करेगा, एक्सॉन्स एक वही मैसेज को अलग नर्व सेल को भेजेगा जिसके लिए ऑर्गन के पास भेजना है थ्रू द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ जंक्शन. अभी एक्सॉन्स के पास क्या होता है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ जंक्शन होते हैं जहां पे एक से ज्यादा नर्व सेल होते हैं. जंक्शन मींस व्हाट, इट जनरली क्रिएट द मोर देन 2 रूट्स. तो ये जंक्शन जो होता है एक्सॉन्स हैविंग अ स्पेसिफिक नर्व जंक्शन जहां पे एक से ज्यादा नर्व सेल्स होते हैं और अलग-अलग ऑर्गन के साथ अलग-अलग नर्व सेल जुड़े हुए रहते हैं. तो ये स्पेसिफिक ऑर्गन का मैसेज को थ्रू द नर्व सेल को पास आउट करता है दूसरे नर्व सेल को थ्रू द पार्ट ऑफ द जंक्शन. अभी यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, यहाँ पे एक से ज्यादा जो नर्व सेल होते हैं ना उनके बीच में स्पेस होती है, इसको स्नैप्स कहते हैं. SYNAPSE. So very small gap which generally seen the present between the nerve cell because there is a group of nerve cell which seen into the junction of axons. तो जो स्मॉल स्पेस जो रह जाती है उस स्मॉल स्पेस को हम स्नैप्स कहते हैं. स्मॉल स्पेस बिटवीन सीन इनटू द मोर देन वन नर्व सेल हैविंग अ जंक्शन व्हिच कॉल्ड एज अ स्नैप्स. SYNAPS इसको स्नैप्स कहते हैं. अभी नर्व टिश्यू इज जनरली मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द नेटवर्क ऑफ सेल. ये जो अलग-अलग नेटवर्क्स के नर्व सेल्स वहां पे जुड़े हुए रहते हैं. So very specialized form of message is conducted by the axons and that is passes to the other form. तो नर्व सेल क्या करेगा, नर्व सेल इस मैसेज को एक्वायर करेगा, उसके बाद फिर से उसको इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करेगा. इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट करने के बाद थ्रू द मोटर नर्व जो स्पेसिफिक ऑर्गन है उस स्पेसिफिक ऑर्गन तक इस मैसेजेस को पास करेगा. तो इस तरीके से पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक इंपल्स का जो सिग्नल जनरेशन होता है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर मूव आउट करता है. So this type of the electric impulse which is generated from the nerve cell and which is passes to the different body of organ through the motor nerve. Clear? चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में. देखिए हमारे बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें दो मेन सेक्शंस आते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड सीएनएस, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी आता है. बट द इंपॉर्टेंट इज व्हाट सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड सीएनएस, इसमें दो मेन सेक्शंस आते हैं. वन इज कॉल्ड ह्यूमन ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड. पहले मैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कशन करूंगा, फिर ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो दीस आर द मेन टू central nervous systems of part which is called spinal cord and human brain. First discussion करते हैं spinal cord. Spinal cord का जो shape होता है, spinal cord is a cylindrical structure. Spinal cord का जो structure होता है cylindrical structure होता है और उसका जो posterior extension होता है उसको हम कहते हैं medulla oblongata. The spinal cord having a structure of cylindrical form and it having a posterior extensions of the medulla oblongata and it enclosed by the vertebral column. ये पूरा का पूरा किससे एनक्लोज होता है, वर्टेब्रल कॉलम से होता है, जिसको वो स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए वो वर्टेब्रल कॉलम जो है वो रिस्पांसिबल होता है. स्पाइनल कॉर्ड जनरली सराउंडेड बाय द 3 डिफरेंट मेम्ब्रेन्स दैट इज कॉल्ड मैनिंग्स. स्पाइनल कॉर्ड के आसपास 3 अलग-अलग तरीके के मेम्ब्रेन्स होते हैं, उस मेम्ब्रेन्स को मैनिंग्स कहते हैं. इसके अंदर 2 तरीके के मैटर्स होते हैं, वन इज कॉल्ड ग्रे मैटर और एक होता है व्हाइट मैटर. ग्रे मैटर जनरली फाउंड इनटू द सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जबकि व्हाइट मैटर जो होता है वो पेरिफेरली प्रेजेंट होता है. तो ग्रे मैटर ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड व्हाइल द व्हाइट मैटर दैट कैन बी पेरिफेरली मूविंग अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड. सो ग्रे मैटर इज जनरली अरेंज्ड इनटू द एच शेप. जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एच शेप होता है उसके अंदर वो ग्रे मैटर जो होते हैं लोकेटेड
और ग्रे मैटर जो होता है दैट कंटेन्स अ वेरी नॉन मेडुला ऑफ नर्व फाइबर्स ऑफ द न्यूरॉन्स दैट प्रोसेसेस द वेरी शॉर्ट प्रोसेस। इसके अंदर बहुत छोटे-छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जो छोटे-छोटे प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। जबकि व्हाइट मैटर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के आसपास पेरिफेरली मूव करता है विद हैविंग अ नर्व फाइबर्स ऑफ द लॉन्ग पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स, और जो काम करते हैं लॉन्ग प्रोसेसेस के ऊपर। जो लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं वो रिस्पांसिबल होते हैं। और व्हाइट मैटर जनरली हैविंग टू बी एक्सटेंडेड टू द मेडुला एज एक्सॉन्स, एक्सॉन्स तक मूव करते हैं। सो सेंटर के अंदर आप देखें तो इन द सेंटर द केयर ऑफ दिस टाइप ऑफ द सेरेब्रल फ्लूइड, ये जो लिक्विड सब्सटेंसेस होता है जिसको सेरेब्रल फ्लूइड कहते हैं, इसके अंदर 31 पेयर ऑफ नर्व्स के स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं, 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स दैट अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे 31 पेयर्स होते हैं नर्व्स के जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं। और ये जो बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक फॉर्मेशंस ऑफ डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू थिकनेस और थिकनेस के हिसाब से कितनी लॉन्ग है कितनी शॉर्ट है उसके हिसाब से वो इंप्लीमेंट होते हैं और ब्रेन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आप देखिए तो असेंडिंग ट्रैक्ट जो होता है और डिसेंडिंग ट्रैक्ट दोनों तरफ से मूव करता है, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर दोनों तरफ से मूव करेगा। असेंडिंग ट्रैक्ट जो होता है वो क्या करता है उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक भेजता है, और जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट होता है वो क्या करता है मैसेजेस को ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक भेजता है। ये काम जो होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट का होता है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एंटायर के ब्रेन के साथ जुड़ के वो कम्युनिकेशंस और एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, राइट। चलिए उसके बाद दो टॉपिक्स और हमारे हैं जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स शार्क कहते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्स एक्शन और व्हाट इज द रिफ्लेक्स शार्क। ऐसे दो अलग-अलग क्वेश्चन 2 मार्क्स में एग्जामिनेशन में रहते हैं। So first we discussing about the reflex action. पहले हम reflex action के बारे में समझते हैं कि what is reflection और maybe give any specific form of example और maybe reflex action क्या है उसका एक एग्जांपल दीजिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। So पहले में आपने reflex action के बारे में अगर हमें समझना है तो एक सिंपल एक्टिविटी देते हैं कि without thinking or any thought, without any kind of thinking or thought towards a response to the involuntary muscles or the stimulation, without thinking or thought the response toward the specific formation of the muscles to a stimulus by a specific gland is known as the reflex action. किसी भी तरह के चीज को सोचे बगैर या इंप्लीमेंटेशन किए बगैर अगर हमारे बॉडी के मसल्स एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के अकॉर्डिंग टू वर्क करते हैं थ्रू एसोसिएटेड पार्ट ऑफ द ग्लैंड उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इट इज कॉल्ड एज अ ऑटोमेटिक प्रोसेस, रैपिड ऑटोमेटिक प्रोसेस, ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है और हमारा बॉडी इसको रिस्पॉन्ड करता है। इसके लिए हमें किसी भी चीज की सोचने की या इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं। इट इज अ रैपिड ऑटोमेटिक प्रोसेस व्हिच कैन बी डन बाय योर बॉडी। फॉर एग्जांपल इसमें का एक सिंपलेस्ट फॉर्म अगर देखें तो नर्वस सिस्टम है और इसका एक सिंपल पार्ट भी है वो नर्वस सिस्टम का। जैसे एग्जांपल लेते हैं व्हाइल पुलिंग योर हैंड अवे ऑन द पिकिंग अ पिन, पिन को जैसे आप टच करते हैं आपको चुभता है तुरंत अपने हैंड को पीछे की तरफ मूव करते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द अनलॉवली टच बाय द हॉट प्लेट, या फिर आपको पता नहीं है कि ये वेसल एकदम हॉट है और आप उसको टच करते हैं तुरंत ही आप क्या करते हैं अपने हैंड को पीछे की तरफ मूव करते हैं। दिस ऑल आर द एक्टिविटीज व्हिच इज कॉल्ड रैपिड ऑटोमेटिक एक्टिविटीज, जिसमें किसी भी तरह की चीज को सोचे बगैर उसको परफॉर्म करते हैं उस तरह की एक्टिविटीज को। दैट इज कॉल्ड रैपिड ऑटोमेटिक प्रोसेस व्हिच इज डन बाय योर बॉडी। लाइक फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लाइक इन द ब्राइट लाइट, एकदम डार्क रूम में आप बैठे हो मूवी देख रहे हो और एकदम फिर सडनली काफी हॉट एटमॉस्फेयर है बाहर, एकदम ज्यादा सनलाइट अवेलेबल और आप जैसे बाहर जाते हैं। सो इन द ब्राइट लाइट द pupils of your eyes that get smaller, जैसे आप बाहर जाते हो एकदम तेज धूप होती है तो आपकी जो pupil होती है धीरे-धीरे स्मॉलर होती है। उसको ये सारे रिफ्लेक्स सेक्शन जो होते हैं ये प्रोटेक्ट करता है, इसके लिए आप सोचते नहीं हो कि आपकी pupils कम हो उसकी लेंथ कम हो। दिस ऑल आर हैविंग द रिफ्लेक्स सेक्शन और इस रिफ्लेक्स सेक्शन के थ्रू क्या होता है कि वो हमारे आईज को प्रोटेक्ट करता है डैमेज ऑफ टू मच लाइट, उससे हमारे आईज को प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा देखिए जैसे कफिंग, कफिंग इज अनदर एग्जांपल ऑफ एक्शंस व्हिच क्लियर आवर विंड पाइप। कफिंग के लिए भी आप सोचते नहीं है, कफ या जो आनी है वो तो आती है, व्हिच जनरली हैविंग टू क्लियर द विंड पाइप। तो कफिंग है, स्नीजिंग है, उसके बाद याविंग है, जमा याव करते पढ़ते पढ़ते बोरिंग लेक्चर लग रहा है, उसके बाद नी गेट्स जर्क है, ब्लिंकिंग ऑफ आई है, डायफ्राग्राम का मूवमेंट है। दिस ऑल द एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स एक्शन। विदाउट एनी काइंड ऑफ थिंकिंग इन थॉट
the movement of the specific organs, that specific part was stimulated by the gland, which is called reflex action. तो सारी जो एक्टिविटीज होती है इसको आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हो। अब ये सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम जो होता है उसको हम रिफ्लेक्स आर्म कहते हैं। हैविंग अभी कोई भी चीज को परफॉर्म करना है तो इट हैविंग अ स्पेसिफिक रूट। फॉर एग्जांपल आपको स्कूल से घर जाना है तो हैविंग अ स्पेसिफिक रूट की इस एरिया से जाएंगे। वैसे ही बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर भी किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इट हैविंग अ स्पेसिफिक रूट्स जिसके थ्रू पूरा का पूरा वर्क करता है, उस चीज को इंप्लीमेंट करता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्म। दैट इज जनरली कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्म। सो इसमें जैसे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हम देख रहे हैं कि द नर्व इंपल्स व्हिच इन्वॉल्व्स द पाथवे टू कंप्लीट द रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज अ रिफ्लेक्स आर्म। रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो नर्व्स इंपल्स का स्पेसिफिक पाथवे होता है उसको हम रिफ्लेक्स आर्म कहते हैं। एंड इट इज आल्सो रैपिड रिस्पांस अलाउड बाय द रिफ्लेक्स आर्म। ये भी एक रैपिड एक्शन होता है जो हमारे बॉडी के थ्रू मूवमेंट में जनरेटेड होता है। सो ये जो मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स आर्म जो है वो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे रिफ्लेक्स आर्म का पाथवे मूव करता है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे अभी हॉट प्लेट को आप टच करते हैं, हॉट प्लेट को आप टच करते हो तुरंत ही अपने हैंड को पीछे करते हैं, पुल बैक। क्यों ऐसा होता है? तो लेट्स टेक एग्जांपल फॉर दैट कि सपोज यू टच अ hot plate and quickly without thinking about any circumstances you just pull your hands back, अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं। Why? Because here the heat is generally sensed by the thermoreceptor which is available in your hands। हमारे हाथ के अंदर एक थर्मोरिसेप्टर होता है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट के सेंस को इंप्लीमेंट करता है। जैसे थर्मोनेस्टी आपने पढ़ा था प्लांट के अंदर, वो हीट के अकॉर्डिंग टू मूवमेंट करता है, वैसे ही हमारे हैंड के अंदर एक थर्मोरिसेप्टर होता है जो हीट के सेंस को रिसीव करता है। तो थर्मोरिसेप्टर क्या करेगा? द थर्मोरिसेप्टर्स ट्रिगर्स अ इलेक्ट्रिकल इंपल्स बाय द सेंसरी ऑर्गन्स। एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऑफ मैसेज को जनरेट करेगा बाय द सेंसरी ऑर्गन्स, और एक कहां ट्रांसमिटेड होगा? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्रांसमिटेड होगा। दैट इलेक्ट्रिकल इंपल्स व्हिच इज डन बाय द सेंसरी ऑर्गन व्हिच इज ट्रांसमिटेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो मैसेज आया वो मोटर नर्व के थ्रू कहां पे जाता है? हमारे न्यूरॉन्स के अंदर। मोटर नर्व क्या करता है? उसको न्यूरॉन्स तक भेजता है, और ये जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कहां भेजते हैं? ब्रेन के साथ, और ब्रेन एज अ मैसेज इंटरप्रेट करके फिर से उसको कहां भेजता है? मसल्स ऑफ हैंड के पास, हैंड के जो मसल्स होते हैं वहां पे भेजता है, जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रास्ट होते हैं और हैंड क्या होता है? पीछे की तरफ मूव करता है। तो इट इज अ रैपिड रिस्पांस व्हिच जनरली इंक्लूड अ स्पेसिफिक पाथ according to that reflex actions of the nerve impulse that can be implemented a specific function, जिसको आप reflex arm कहते हैं। क्लियर? तो आई होप कि आज का भी सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें डिस्कसिंग अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सेल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल बॉडी, dendrites and axons, how the electric impulse of masses that should be carried out into the human body, what is called spinal cord, and how the reflex action, reflex arm action be brought. So I hope for today's session that should be easily understandable by you students. When we meet tomorrow, we'll be discussing about the very important topics about the human brain and the glands. Which are the endocrine glands in our body, what are their functions, and very important topic of central nervous system is human brain, how they can be worked as a control of entire activities in the human body, and how the hormones can be implemented as a human body, and what are the functions of hormones. So these are the topics that we're discussing tomorrow. So I hope for the today's session that should be easily understandable by you. So I request you to stay home and stay safe, keep revising, keep updating your knowledge by implementing digital mediums of studies. Students, we'll meet tomorrow. Then for today's, that should be enough for the lectures. Take care and bye.